morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Good sir. morning. You can whisper. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बेटा. इसमें ये पता नहीं चलता ना कि who is speaking. आपका माइक कुछ होता. गुड मॉर्निंग बेटा. तो कल पढ़ा था, फिर जो पढ़ाया था रिवाइज किया था. Yes, sir. Wow, that's too good. Very few people are coming to class. Only 31 people out of A and B section. Why? Like they have already read everything. Are they like omniscient? They know everything. Okay, that's good. Mr. Criminal joined. Mr. Criminal, please join with your original name. Else I will have to remove it. Chalo, ठीक है. Let's wait one more minute, then we shall begin. So today we will read about distance and displacement. Okay. Yesterday we have read about scalars and vectors and absolute quantity and relative quantity. Acha, if the quality of the video is not good, you know, like when I'm recording Zoom, itna acha record nahi hota. So I have made certain videos on YouTube. You can watch them. Okay. Are you people there? Everybody has muted themselves. Okay, okay, no Yes, problem. sir. चलो ठीक है फिर. Let's begin. Okay. So see, yesterday we have read about distance. Distance पढ़ा था ना, displacement नहीं पढ़ा था. Scalars, vectors पढ़ा था. तो distance क्या होता है? Length of actual path covered by an object, है ना? If I'm moving from point A to point B, तो जितना भी path length मैं cover करूँगा, that will be the distance, है ना? Example I have already given you yesterday. Let's see. अरे यार, sorry. Wait, I'll have to start one note. Wait. What else classes do you have today? English. English and computer. English and computer. Okay. That's great. Miss Midha English is and there. Wait a minute. Not happening. So yesterday we have read about distance. It is equal to length of total path covered by an object, and it is a scalar quantity. Why? Because there is no definite direction. Okay. If you want, you can rotate the screen for a bigger view. है ना? Clear है? If you want, you can rotate the screen ना, तो उससे आपका व्यू क्लियर हो जाएगा. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ओके. अब देखो, डिस्टेंस अपन ने पढ़ लिया. ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर. नाउ वी विल रीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट. ठीक. आई होप आई राइट इन अ बेटर वे टुडे. टुडे वी विल बी रीडिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट की सिंपल डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position. Yeah, covered by an object. Perfect. This is what displacement it is. It is the shortest path between initial and final position. ठीक है. अब मैंने suppose कहा
this is a point A and this is a point B, and the path from A to B is like this. एक minute, somebody has not muted himself. Wait. Microphone. Stop participants. Sure. So suppose this is the path from A to B and we are going in this direction. जहाँ से start करते हैं वो initial position, जहाँ पे end करते हैं वो final position. ठीक है? So this is how we are going from A to B. Now, if you look, what can be the shortest path between 2 points? The shortest path between 2 points is a straight line. तो अगर कभी भी आपको दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल कनेक्ट बोथ द पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन. तो if I want to find the shortest path, this is the shortest path from A to B. Just wait now. Sorry for the, this is the shortest path between A and B. So this straight line AB will give the displacement. तो कभी भी displacement निकालना है, बाकी पॉइंट से मतलब नहीं, केवल इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है और दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है. वो जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है? अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक, अब वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर मैं बात करूं, इफ आई ट्रैवल अलोंग द पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो देखो थ्रू आउट मेरा डायरेक्शन कैसा रहा, क्या मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है? इट इज नॉट चेंजिंग. थ्रू आउट माई डायरेक्शन इज सेम. और कौन सा डायरेक्शन है ये? राइट साइड आपका ईस्ट ले लेते हैं. ठीक है, ईस्ट की स्पेलिंग सही है ना? So since my direction is not changing, therefore displacement is a vector quantity. So whenever you want to calculate or find displacement, what you have to do, just connect the initial and final point by a straight line. बाकी पॉइंट से मतलब नहीं है. मान लो एक ऐसा डायग्राम दे दिया, ये A है, फिर ये B है, फिर ये C D ऐसा दे दिया, A B C D E ऐसा दे दिया. अब बोला कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो बाकी पॉइंट से मतलब नहीं है, बस इनिशियल और फाइनल को अपने को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है. ये जो ए ई लेंथ आएगा, दिस ए ई लेंथ विल बी द डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर बोला डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डिस्टेंस कितना होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी. So in case of displacement, you have to only look at the initial and the final point and the length between them. Whereas in case of distance, you have to look at all the lengths that you have covered and you have to add them. Take distance हमेशा add होता है, कभी भी subtract नहीं होता. अच्छा, अब इसके बाद थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, बट न्यूमेरिकल के पहले कुछ अपन डिफरेंसेस देख लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, देखो यहाँ पे. अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, अगर उसने हल्का सा भी मोशन किया या ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. अच्छा, एक चीज और, फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपन एस से दिखाते हैं. किससे दिखाते हैं? एस. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डी से नहीं दिखाते, एस से दिखाते हैं. अच्छा, अब अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको केवल आप एस से दिखाना. और डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी. तो उसको ऐसे एस लिखना और उसके ऊपर एक एरो लगा देना. ये एरो होता है वेक्टर का साइन. जैसे स्पीड को अपन v से दिखाते हैं और वेलोसिटी को v बना के उसके ऊपर एरो, जिसके ऊपर एरो लग गया मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एंड दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अभी अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंसेस को जानते हैं. ठीक, एस मीन्स डिस्टेंस एंड एस के ऊपर एरो मतलब डिस्प्लेसमेंट. तो वही मैंने कहा कि इफ द ऑब्जेक्ट हैज गॉन थ्रू सम मोशन, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है,
इवन इफ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड सम डिस्टेंस। कैसे? सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, मतलब छोड़ो उसको, ये ऑब्जेक्ट ऐसा गया ए से, ऐसा घूमा 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 और वापस ए पर आ गया। तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? ए। उसका फाइनल पॉइंट भी क्या हो गया? ए। तो अब एक ही पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? जीरो। तो कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट घूम भाग कर वापस वहीं पे आ जाए जहां से उसने स्टार्ट किया था, in that case the displacement of the object will be zero। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, doesn't matters कितना दूर जाता है। जैसे आप सतना से रीवा गए और रीवा से सतना वापस आ गए, सेम अपने घर में आ गए, सेम स्पॉट पे आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक डिफरेंस ये है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस को जनरली अपन हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मास है किसी चीज का भी, तो कभी ये थोड़ी कहते हो कि मेरा मास है -2 kg या -3 kg। हमेशा पॉजिटिव ही बताया ना मास को, कभी नेगेटिव बताया नहीं, बताया आपने आज से। तो स्केलर जितनी भी क्वांटिटीज है हमेशा वो पॉजिटिव अपन मान के चलते हैं। टाइम हो गया, टाइम कभी नेगेटिव, समय पीछे कहाँ जाता है ना। एक मूवी है टॉम क्रूज की, एज ऑफ टुमारो, वो देखना, उसमें समय पीछे जाता है। क्या छोड़ो। उसके बाद फिर अपन आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना एक चीज, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाला केस, ठीक है। देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, पॉइंट ए से। अब जनरली जब भी अपन, अब आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन, ठीक है, तो सपोज मैं अपने राइट हैंड साइड जा रहा हूँ, तो जो मेरा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको मैं हमेशा पॉजिटिव लेता हूँ, और उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड, उसको मैं क्या ले लूंगा? उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। तो मान लो मैं ए से जा रहा हूँ ऐसा टूवर्ड्स बी, तो इस डायरेक्शन को मैं क्या ले लूंगा बेटा? इसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा। और अगर मैं बी से वापस लौट रहा हूँ ए की तरफ, तो फिर ये उल्टा हो गया, इसको अपन नेगेटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। तब देखो सिंपल एक एग्जांपल है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ओ पर है, जस्ट कंसिडर दिस हियर, यार पेज ही खत्म हो गया, कोई बात नहीं। जस्ट सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ओ, ओ से ऑब्जेक्ट गया ए तक, सपोज ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। अब उसने ए पर टर्न लिया, वो वापस आने लगा, वापस आते आते ऊपर आ गया, तो यहाँ पे आने पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। मतलब उसने जहां से स्टार्ट किया वो वापस वहीं पर आ गया। लेकिन जस्ट सपोज वो इसके बियॉन्ड चला गया, ये ऐसा, और इधर 1 मीटर चला गया, तो ये जहां से स्टार्ट कर रहा है ना, नंबर लाइन पढ़े हो ना मैथ में, ये ओरिजिन होता है, उसके राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव और उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, ये आपका ओरिजिन है। इस अगर इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, तो इधर आपकी सारी लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी और इधर आपकी सारी लेंथ नेगेटिव आ जाएगी। तो अगर इस केस में किसी ने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आपका आंसर देखो, ये इनिशियल पॉइंट ओ है, मान लो ये फाइनल पॉइंट बी है, आपको केवल इनिशियल और फाइनल देखना है। अब आपने इस तरफ वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना, तो इस तरफ वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी -1 मीटर। क्लास 9th में आपके एनसीईआरटी में नेगेटिव वाले केसेस नहीं दिए हैं, बट इफ यू आर गोइंग फॉर एन ओलंपियाड और समथिंग, वहां पे केसेस आते हैं, तो पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज। बाकी फिर 11th में है ना, सीबीएसई इज अ वेरी इजी बोर्ड, तो ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है ये डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है? हम्म। और अगर घूम के वहीं पे आ गया तो जीरो हो जाएगा, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हो, कौन सा डायरेक्शन आप नेगेटिव ले रहे हो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर है? हम्म। कृष, स्निग्धा, प्रगति, चैट में क्या बोल रहे हो? ओके तरुण, क्लियर है तरुण को? ओके, किसी को कोई डाउट अभी तक?
क्यों बेटा? इसमें म्यूट ऑल तो हो जाता है, अनम्यूट ऑल कैसे होता है? हैं? क्यों? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। Wait. Enable play sound, ask all to unmute, ask होता है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं करता हूँ। अब देखो अपन न्यूमेरिकल करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन सिंपल सा ये आता है कि इन विच केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, वो बराबर कब होंगे? टेल मी, चैट तो कर सकते हो, टेल मी इन द चैट मैसेजेस व्हेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। टेल मी बेटा, कब इक्वल होते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? हम्म हम्म, हम्म, हम्म। When object has same initial and final position, लक्ष्य is same, उस केस में तो जीरो हो जाएगा यार, क्या बात कर रहे हो लक्ष्य, ऐसा मत बोलो। चलो, you can tell I have changed the setting, कोई बोलो, you can unmute yourself. When an object When moves in a distance is straight in a line. straight line. हाँ, when the object moves in a straight line in one कितना छुट्टी है particular उसे direction. पहले बताना चाहिए था ना, रात से हमको काट रहे हैं ये खुद पर तो फेंक कर रही हो फेंक कर हम नहीं देंगे मैंने फेंका है घर में फैमिली ड्रामा चल रहा है यार। अरे यार मैं तो फेंक कर रहा चलो म्यूट, क्या इज नॉट देयर, अरे यार फिर से म्यूट करना पड़ेगा, यही खराबी है जूम में। चलो कोई नहीं, आई थिंक इट इज सेटल्ड। सी, सपोज ऑब्जेक्ट ए से ट्रैवल कर रहा है एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स बी, ठीक है। तो अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होता है तो ऐसे मोशन को अपन बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक लाइन में सीधा चल रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक थोड़ा वो है, मान लो ये ए से बी तक गया, ए से बी तक है 5 मीटर, ठीक है। फिर बी से सी वापस आ गया, भाई ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, बस डायरेक्शन चेंज हुआ है, एक बार ऐसे जा रहा है और फिर वापस ऐसे आ गया, लाइन तो सीधी है ना। अगर आपके पास एक स्ट्रेट रोड है तो या तो आप सीधा जाते हो, उल्टा वापस आओ, मोशन तो लीनियर ही है। तो मान लो बी से सी तक आ गया और मान लो ये डिस्टेंस है 3 या 2, मान लो 2 मीटर। तो क्या इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है? अक्षिता, आस्था, बताओ बेटा। Are distance and displacement equal in this case? No, sir. नो सर हाँ, तो इसीलिए लीनियर मोशन तो ठीक है, एक तुमने कंडीशन अच्छा बता दिया कि जब लीनियर मोशन हो, बट वो भी कैसा? लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क का, सब नोट कर लिया करो, ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखा करो। In which case distance and displacement are equal, they are equal when the object moves in a straight line in one particular direction. Am I clear to you? Laksh, Gagan, Yes, sir. Palak, Yes, sir. Arya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means I am a very good teacher if I am clear to you. चलो next, ठीक है। अरे यार कहाँ गए क्वेश्चन? आई हैव टू सर्च द क्वेश्चन, इतना कुछ मैंने पढ़ा दिया है कि अब मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिले। तो क्लास 10th का है, ये 12th का है। वेट, हाँ बट क्या,
circular motion. चलो ठीक है, let's write a question. Note down this question in a copy and tell me the answer. Okay? Meter east. Then west, 4 meter. बताओ इसका आंसर। बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। Solve it बेटा and tell me the answer. क्या आंसर आएगा? Calculate the distance and The distance is 7. Sir, distance is 7 and 5 meter is displacement. Okay, have you solved it or have you just randomly given the answer? No, sir. I had Yes, sir. solved. 7 meter is the distance and 5 meter is 5 the meter is- displacement. अच्छा, Yes, show me the solution. Show the solution to the entire class. Sir, we can add that 3 meter and 4 meter to get the distance, and by it is becoming a right angle triangle. So by the Pythagoras theorem, we can find the displacement. Okay, beta. What's your name? Gagan Agrawal. Gagan. See how to do such a very easy question. कैसे करना है? ये क्वेश्चन आपको दिया स्क्रीन में. Find the distance and displacement of object in 3 Sir. meter. हाँ बेटा. सर थोड़ा एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए फिर से। हाँ बता रहे ना, क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट एंड देन मूव्स 4 मीटर नॉर्थ. देखो यहाँ पर पहले अपन इसके लिए थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम आप बना लेना. कह रहा है एक Sir. ऑब्जेक्ट है जो पहले 3 मीटर ईस्ट मूव कर रहा है. ओहो, ये क्या बन जाता है इसमें जूम में यार. वाओ, सॉरी, इंक शेप करता है. ठीक, this is an object, it is moving 3 मीटर ईस्ट. ठीक, यहाँ O से स्टार्ट किया A तक, ये 3 मीटर ईस्ट जा रहा है पहले ऐसा. फिर कह रहा है कि देन इट मूव्स, एक मिनट, लेट मी रब दिस, देन इट मूव्स 4 मीटर नॉर्थ. तो यहाँ पे आपने दूसरा शेप ले लो, इसको यहाँ नॉर्थ भेज दो ऐसा. ये 4 मीटर नॉर्थ चला गया. ठीक, ये मान लो B तक आ गया. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक, डिस्टेंस तो सिंपल ऐड कर दो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OA प्लस AB दैट इज 3 + 4 7. डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कनेक्ट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, इजंट इट. तो आप इनको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से. ये आपने ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से. तो ये जो OB लेंथ है ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. अब कैसे निकालना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ना, डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. तो यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, है ना. तो लगा दो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. h स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 स्क्वायर. h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25. 25 मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, आपका हाइपोटेनस 5 मीटर आ गया. मतलब द डिस्प्लेसमेंट इज OB, इट इज इक्वल टू 5 मीटर. आ गया आपका आंसर. अच्छा, इसमें एक पार्ट और पूछ लेता है, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है. Northeast. Northeast. Northeast.
Sir, northeast. आराम से बोला करो, चिल्लाया मत करो ना, मेरे कान वो हो जाते हैं। हाँ, तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना भाई, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, ये आपकी डायरेक्शन है, ये सामने मतलब नॉर्थ है, पीछे साउथ है, राइट में ईस्ट है और लेफ्ट में वेस्ट है, तो ये यहाँ से आप ओरिजिन ही मान के चलो, तो ये इस तरफ जा रहा है, ये क्या हो गया, ओ, 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 ओके वेट बेटा बेटा, अच्छा ये हैंग हो गया वर्ड, वेट बेटा। तो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, तो ये आपका डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सभी को, बन जाएगा, इजी है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो फिर एक मिनट तक, Yes, sir. ठीक है, नाउ यू विल डू इट, ओके। अक्षता, whom are you watching? Is the sister disturbing you? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स, सपोज मूव करता है 4 मीटर ईस्ट, ठीक है, मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ, अब ऑब्जेक्ट मूव्स नहीं लिख रहा हूँ, देन मूव्स कितना मूव करवाए, चलो 4 मत करवाओ, पहले 2 मीटर करवाओ, 2 मीटर ईस्ट मूव करता है, देन मूव्स 6 meters north, ठीक, and then again moves 6 मीटर ईस्ट, पहले 2 मीटर ईस्ट किया, फिर 6 मीटर नॉर्थ किया, और फिर 6 मीटर ईस्ट किया। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस, you have to calculate displacement, and you have to calculate the direction of displacement। चलो करके बताओ, you have 10 minutes in your hand। बताओ बेटा करके, सॉल्व इट। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर ईस्ट, 6 meters north, and then again moves 6 meter east, you have to calculate the distance, the displacement and direction of displacement। Do it। Let's see who can do it। ट्राई करो कि, अच्छा डायग्राम बना लेना, बिना डायग्राम बनाए नहीं बनेगा, ठीक है। Sir, Yes, distance is 14 meter, direction is northeast, and displacement is 6 meter. नहीं, that is not the right answer। मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन तो ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट करेक्ट। करो आराम से करो, टेक योर टाइम, यू हैव 10 मिनट्स, इनफैक्ट यू हैव एन एंटायर डे, क्योंकि मेरा जूम मीटिंग में लिमिट नहीं है। हाँ, तो आई कैन सिट हियर द एंटायर डे, यू कैन लाइक Sir, displacement is 10 meter. displacement is 10 meter। Who has told the answer? Vaibhav Singh. Show me what you have done। वैभव कहाँ है? ये वैभव ने आंसर पिन कर दिया मैंने वैभव को। देखो भाई, तुम वैभव को देखो साइड करके, let me see Vaibhav, what have you done? So this is how Vaibhav has done it। Have you seen everybody?
सभी ने देखा? चलो ठीक है वैभव, इट्स ओके इट्स ओके। देखा आप तुमने बेटा वैभव ने कैसा किया? Yes, sir. देखो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दिया है ना, तो इट्स लाइक दिस। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और मेरे को डायरेक्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है? कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर ईस्ट, सपोज ये 2 मीटर गया ये, अरे यार ये सही में ये 2 मीटर गया, ठीक है ऑब्जेक्ट ऐसा। ये 2 मीटर है, इसको आप मान लो ओ, इसको आप मान लो ए, दिस इज 2 मीटर, ठीक है? फिर कह रहा है 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ चले जाए, आप नॉर्थ चले जाए। सपोज ओ से बी हल्की लाइन टेढ़ी है, बुरा मत मानना, बट आपको सीधी ड्रॉ करनी है, ठीक है? अब उसके बाद कह रहा है एंड अगेन इट मूव्स 6 मीटर ईस्ट, फिर से आप 6 मीटर ईस्ट चले जाओ, ठीक? ये पहुंच गया पॉइंट सी पर। देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कनेक्ट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी है, तो इनको मैं स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, ये ठीक। अब मुझे ओसी फाइंड करना है, ओसी फाइंड करने के लिए मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, लेकिन कोई राइट एंगल ट्राइंगल मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कंप्लीट अ राइट एंगल ट्राइंगल बाय ड्रॉइंग इट। कैसे? देखो जो पॉइंट सी है ना, वहां से आप ऐसा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी, ऐसा, ये सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी, ऐसे ये दोनों यहाँ मीट कर रहे हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा ए बी कितना है, ए बी 6 है, तो इसको आप डी मान लो, तो ये सी डी भी 6 हो जाएगा। बी सी कितना है, बी सी 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से, ओ सी डी, ओ सी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने ओ सी डी ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे ओ सी निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ओ सी डी, क्या मिलेगा आपको, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका सी डी हो गया। अच्छा बेस कितना होगा, पूरा होगा ओ डी, ओ डी का स्क्वायर। अब देखो ओडी का पूरा लेंथ नहीं दिया है, बल्कि ओए दिया है और एडी दिया है, तो ओडी टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 6 8 मीटर, तो ओ सी स्क्वायर हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ओ, अरे सॉरी हाँ, सी डी हो गया 2 का स्क्वायर, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ओ सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी डी कितना हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस ओडी कितना हो गया, ओडी आपका 8 हो गया, 8 का स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर आ गया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 100 आएगा, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ओ सी आपका आ गया 10 मीटर और डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है सभी को? क्लियर नहीं है? Yes, sir. है ना? अब देखो फिजिक्स में वंस यू हैव ड्रॉन द डायग्राम एंड इफ यू हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग, तो आपको मैथ में अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फिजिक्स बनेगा, ठीक है? अच्छा वैभव हैज स्टडीड ऑल दिस, ओके। और किसी को बना था वैभव के अलावा? क्यों, किसी और को बना था वैभव के अलावा? हम्म? पृथ्वी, वैभव, कृष, मानवी, स्निग्धा, अर्णव, किसी और को नहीं बना? चलो ठीक है, टेक डाउन द सॉल्यूशन।
क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. गुड। आर्यन यस। चलो तो बनेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे सॉल्व करते हैं? Yes, sir. Yes. चलो फिर Yes. आज के Yes, लिए sir. आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो कल अपने कॉपी पेन लेके बैठना। आई गिव यू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करेंगे अपन, और फिर देखते हैं आपसे कितना बनता है कितना नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. ओके ओके, दैट्स गुड। चलो ठीक है बेटा ना, फिर अपन कल पढ़ते हैं। ओके, अनुष्का, तृप्ति, मानवी, स्वर्णा, गगन, स्निग्धा, अर्नव, पलक, दलजीत, राखी, तृप्ति, तरुण, अपूर्व, जन्मेजय। सर हाँ बेटा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कल ही देंगे कि आज भी देंगे? आज नहीं बेटा, कल देंगे। ठीक, कल आप यहीं बैठ के सॉल्व करना। ओके, सर आपकी फोटो बार बार हिल रही है, चेहरा आपका हिल रहा है। तो मेरा चेहरा देखने के लिए बैठा हूँ। दिक्कत थोड़ी है, कुछ पढ़ लो ना सामने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट इट टुमारो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक बार ट्राई करना, ठीक? कॉज जितने भी मैं चीजें करवा रहा हूँ, कॉपी में नोट्स बनाते रहो एंड प्लीज टेक डाउन द क्वेश्चन। और जब कॉपी में क्वेश्चन लिखते हो तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन। ठीक, क्लियर है? अगर डाउट हुआ तो पूछ सकते हैं। पूछ लेना, है ना बेटा? व्हाट्स योर नेम हु इज हैविंग सो मेनी डाउट्स? क्या नाम है बेटा आपका? चलो ठीक है ना, ओके शिवांश त्रिवेदी। ओके शिवांश, पूछ लेना बेटा, ठीक है? यस। चलो ओके बाय। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक Thank you, you sir. Thank you, sir. वेलकम वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।